Hello students. Today we are going to discuss chapter bank reconciliation statement. So first of all, meaning bank reconciliation statement is a statement which is prepared to reconcile the bank balance of cash book and balance shown by passbook. Meaning मैं लिख देता हूं इसे, meaning और definition of BRS कि BRS means bank reconciliation statement is a statement which is prepared to reconcile the bank balance of cash book and balance of passbook. You know, every business maintain its cash book. हर एक बिजनेस क्या करता है, अपनी कैश बुक मेंटेन करता है एंड इट रिकॉर्ड ऑल द बैंकिंग ट्रांजैक्शन in bank column of cash book and the same transactions are also recorded by bank भी same record करता है in its ledger and bank give a copy of its transaction or ledger account to its client in form of passbook. So जो ट्रांजेक्शन हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं वही का वही बैंक भी रिकॉर्ड करेगा. फर्क सिर्फ इतना है कि जो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे बैंक उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा और जो हम क्रेडिट में करेंगे बैंक उसे डेबिट में करेगा और बैंक उसकी कॉपी अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को देता है इन फॉर्म ऑफ पासबुक. करेक्ट. एंड समटाइम्स वी फाइंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शोन बाय पासबुक एंड बैलेंस शोन बाय आवर कैश बुक. सो जब सेम ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में नोट कर रहे हैं एंड सेम ट्रांजैक्शन इज बैंक इज आल्सो रिकॉर्डिंग, तो बैलेंस शुड बी सेम. बट समटाइम्स वी फाइंड कि देयर आर डिफरेंट बैलेंसेस शोन बाय पासबुक मींस बैंक स्टेटमेंट यू कैन से एंड बैलेंस शोन बाय आर कैश बुक बैंक कॉलम. ओके, सो ऐसे में हम क्या करें, इन दोनों बैलेंसेस को जो कि डिफरेंट हैं, इन दोनों बैलेंसेस को मिलाने के लिए, मैच करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम BRS. गॉट इट. तो मैं इसको दोबारा से रीड करता हूं. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल मीन मैच करना. If there are some differences, then उसे मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए. तो it is a statement which is prepared to reconcile इसे the bank balance of cash book and balance shown by passbook. तो इन दोनों बैलेंसेस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं that is known as BRS. And this statement can be prepared at any time during the year. किसी भी डेट पे आप बना सकते हो. That's why it is written bank reconciliation statement as on because it can be prepared on a particular date. किसी भी डेट पे आप इसको बना सकते हो during the year. Got it? So next हम बात करेंगे एक माइंड में क्वेश्चन होगा आपका कि सर when we are recording all our transaction in cash book and bank is also maintaining the same record, then why there are some differences. ये ऐसे differences आए क्यों, difference किस लिए आ रहे हैं. So there may be different reason for the difference arise between bank passbook and balance shown by our cash book. तो कई रीजन हो सकते हैं. There may be time gap between the transaction. Suppose we have issued the check to someone, हमने किसी को चेक से पेमेंट कर दी एंड 2 दिन का 3 दिन का किसी भी रीजन से कोई फेस्टिव वीक आया और ऑफ हो गया. बैंक रिकॉर्डेड द सेम चेक और जिसे हमने चेक दिया उस पर्सन ने वो चेक जो हमारे बैंक से विड्रॉ किया, he withdrew the same check after 2 or 3 days or 4 days. Sometimes bank also takes some time to make this procedure. ओके, तो डिफरेंस आ गया टाइम में, मतलब टाइम गैप आ गया. तो ऐसे में हमने तो अपनी कैश बुक को रिड्यूस कर दिया बट बैंक ने रिड्यूस नहीं किया. सो टाइम गैप में बी द रीजन.
one of the reason. And second reason may be recording of wrong transaction either by our clerk or cashier. कैश बुक में रिकॉर्ड करते हुए आप wrong amount रिकॉर्ड कर सकते हो. Likewise, bank also commits some mistakes in writing the transaction. Okay, so there may be different reason for arising such differences between the balance shown by cash book and balance shown by passbook. So question rise कि हम इसे कैसे करेंगे? So for this we prepare bank reconciliation statement as on a particular date and format. I have made this format particulars and plus and minus column. This one is first column is particular, plus column and minus column. So we can start this bank reconciliation statement by 4 ways. Because we know there may be 2 balances in cash book. कौन कौन से हो सकते हैं? Debit balance means favorable balance as well as credit balance means overdraft balance. Same BRS can be started by taking base the balance of passbook. Same debit means overdraft balance and credit means favorable balance. डिफरेंस होता है, रिवर्स होते हैं. जो हमारा डेबिट बैलेंस है बैंक का वो क्रेडिट बैलेंस होगा. बोथ आर फेवरेबल बैलेंस. ओके. एंड जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है विच इज ओवरड्राफ्ट बैंक का वही डेबिट होगा. वो आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. सो फर्स्ट हम बिल्कुल स्टार्टिंग बेस लेके चलते हैं. इफ फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन तो मीन्स आप यहां लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस मीन्स डेबिट बैलेंस. सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. सो मैंने फर्स्ट बेस लिया कि डेबिट बैलेंस, देयर मे बी क्रेडिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस, वो आपको बाद में बताऊंगा. फिलहाल डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इफ इट इज गिवन वी विल राइट द सेम बैलेंस इन आवर दिस प्लस कॉलम. कहां शो करोगे इसे आप? प्लस कॉलम में. दूसरा कोई वे भी हो सकता है, डिटेल एंड टोटल अमाउंट कॉलम भी हो सकता है, वो अलग, दैट इज द अनदर पैटर्न, बट ये इजी रहेगा आपके लिए फॉर्मेट. गॉट इट? सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमने यहां लिया. नाउ वी विल फाइंड आउट द डिफरेंसेस इन क्वेश्चन. ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंसेस विल बी गिवन बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन. कुछ डिफरेंसेस दिए होंगे, हमें वहां यहां कंसिडर करने हैं. गॉट इट? कैसे करोगे? व्हाट आर द रीजन कि जिन्होंने दोनों बैलेंसेस के बीच में गैप क्रिएट कर दिया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया? फर्स्ट रीजन इज, हम लोग अब इस फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन रीजन ड्यू टू विच डिफरेंसेस आर क्रिएटेड बिटवीन दीज 2 बैलेंसेस. मोर ओवर हम इसी फॉर्मेट में साथ साथ डिस्कस करेंगे अब उसे हम क्या करें जिससे इन दोनों के बैलेंसेस क्या हो जाएं, टैली हो जाए. करेक्ट? सो फर्स्ट इज चेक इशूड. Check issued or drawn but not yet presented by the bank by the customer. Got it? So first transaction is check issued but not yet presented by the customer. अब चेक हमने किसी को पेमेंट कर दी, हमने किसी को चेक काट के दे दिया. सपोज वी परचेज गुड्स ऑन परचेज गुड्स एंड मेड पेमेंट बाय चेक. एंड सपोज वी पेड रेंट ऑफ आवर बिल्डिंग, हमने रेंट पे किया. सो हमने अपने लैंडलॉर्ड को क्या दे दिया? चेक इशू कर दिया. आप बताइए कि व्हाट इज द लॉजिक और ट्रांजैक्शन वी रिकॉर्ड सच पेमेंट इन आवर कैश बुक. कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसे हम? डेफिनेटली जब आप चेक देंगे तो आप कैश बुक को रिड्यूस करते हो. और कैश बुक को बनाने का एक इजी वे था हमारा. कैश बुक अगर आपको याद हो प्लस माइनस. ओके, प्लस माइनस मींस इंक्रीज इन कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस वुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन कैश और बैंक बैलेंस आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड. रियल अकाउंट का रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट. सो सेम आपको कैश बुक का मालूम है. सो आपने किसी को चेक इशू कर दिया. चेक इशू करते ही आपने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया. बट जब आप बैंक में गए और आपने पासबुक कंप्लीट कराई या बैंक से एक स्टेटमेंट ली तो वहां दिखा कि वो पर्सन जिसको आपने चेक दिया वो आपके बैंक से पैसा लेकर ही नहीं गया, उसने पेमेंट विड्रॉ ही नहीं किया आपके बैंक से.
तो इट मींस क्या हुआ कि बैंक का बैलेंस तो वहीं का वहीं है, बट यू हैव रिड्यूस योर बैलेंस ऑफ कैश बुक। सो ऐसे में दोनों को रिकंसाइल करने के लिए क्या करें हम लोग, वी विल ऐड द सेम ट्रांजैक्शन। हम इसको क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, तभी हमारे दोनों बैलेंसेस क्या होंगे, टैली होंगे। गॉट इट? क्लियर है ये बात? मैं इसके लिए आपको एक चीज और बता दूं कि हम लोग यहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चल रहे हैं। सो रिमेंबर, हमने जिसे बेस लिया है उसी में चेंजेस करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट टच और इफेक्ट द पासबुक। पासबुक बैंक के पास है और हम इस टाइम अगर पासबुक से मैच कर रहे हैं बाय टेकिंग द बेस ऑफ बैलेंस ऑफ कैश बुक, देन हम कैश बुक में चेंजेस करेंगे। मैं एक आपको एग्जांपल से क्लियर कराता हूं। आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस। Yes. Yes, find out what is this। क्या ये एक बीम बैलेंस, एक तराजू है, ठीक है। इसमें जब आप वेट करते हो तो क्या करते हो, एक तरफ आप क्या रखते हो, वेट रखते हो। सपोज यहां पे आपने रखा वेट 1 kg और दूसरी तरफ आप क्या करते हो, कोई ना कोई सामान लगेज आप वे करते हो, तोलते हो, उसको करते हो ना। अब एक बात बताइए आप, देखिए जो आप जहां पे वेट लेके चल रहे हो दैट इज योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मींस जैसे हमने क्वेश्चन को कैश बुक से स्टार्ट किया तो हमने पहुंचना कहां पे है, पासबुक तक मैच करना है, तो पासबुक इज आवर डेस्टिनेशन। सो जहां पे आपने वेट रखा दैट इज योर डेस्टिनेशन। सो दिस टाइम आई कैन से दिस मे बी योर पासबुक। इसे हम क्या कह सकते हैं, पासबुक बोल सकते हैं, ठीक है जी। और जो वे करते हो आप, जो माल तोलते हो, जो गुड्स तोलते हो आप, मेजर करते हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे यहां पे, कैश बुक। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई भी सामान तोलना हो और अगर आपका सामान में डिफरेंसेस आता है, सपोज आपने 1 kg शुगर को वे करना है, तोलना है आपने, और सपोज आपकी कैश बुक का जो है वो यहां आ रहा है, ये सामान जो आप तोल रहे हो वो थोड़ा ऊपर रह गया, आप बैलेंस चेक करिए, ये यहां होना चाहिए आपका, है ना। और आपका जो सामान है वो शुगर कम है, तो आप बताइए आप इस वेट से मैच करने के लिए क्या करेंगे, इसमें शुगर थोड़ी और ऐड कर देंगे। बताया ना मैंने, सपोज यहां पे आप क्या वे कर रहे हो, शुगर, आप शुगर को तोल रहे हो, यहाँ पे 1 kg शुगर देनी है, उसमें थोड़ी कमी रह गई, तो ये वाला तराजू ऊपर है, तो आप क्या करोगे, इससे मैच करने के लिए शुगर कुछ और ऐड करोगे, सो दैट इट शुड बी 1 kg। तो 1 kg इक्वल होने के लिए आप क्या करोगे, इसमें कुछ और शुगर ऐड करोगे, मतलब प्लस करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये आपका डाउन होकर नीचे यहां तक आ जाएगा। गॉट इट? एंड लाइकवाइज सेम, इससे रिवर्स आप लेके चलते हैं। सपोज आपने शुगर वे की और ये जो हमारा आ रहा था, जैसे सपोज ये इतना आ गया, शुगर वे करते हुए टोटल शुगर का वेट करते हुए शुगर ज्यादा चली गई, तो शॉपकीपर क्या करेगा बताइए, क्या करेगा, वो इसमें से कोई शुगर निकाल लेगा या इस वेट को और ऐड करके दे देगा आपको, नहीं, वो इस शुगर को क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, कुछ वहां से हटा लेगा। सो ऐसे में क्या करना है आपको, यहां से कुछ माइनस करना है, इसमें से कुछ हटाना है, सो दैट ये जो साइड है ये हमारी ऑटोमेटिकली ये पलड़ा ऊपर चला जाएगा, एंड अगेन इट वुड बी इक्वल टू दिस वेट। सो आपने, ये है आपकी पासबुक एंड दिस वन इज योर कैश बुक। इसे रिकंसाइल करना है, इसे आपने मैच करना है, तो मैच करने के लिए आपने देखना है कि किसी भी रीजन से अगर आपकी कैश बुक कम दिख रही है, किससे, वेट से, वेट मीन पासबुक से, तो आपने उसमें कुछ ऐड करना है, जैसे हमने शुगर को ऐड किया तो हमारा ये इक्वल हो गया। एंड इफ यू फाइंड के ड्यू टू एनी डिफरेंस, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ कैश बुक आपकी इस पासबुक से ज्यादा है, मींस शुगर आपकी इस 1 kg वेट से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, शुगर को वहां से हटा दोगे, कम कर दोगे, जस्ट टू ब्रिंग इक्वल टू दिस बैलेंस ऑफ कैश बुक और 1 kg। तो इसमें से आप कुछ माइनस करोगे और तब जाके ये बैलेंस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम कंसेप्ट आपको याद रखना है बेटा, हमने लिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि ये है कैश बुक। ओके, ये क्या है आपके लिए, यहां मैं लिख देता हूं इसको प्रॉपर, कैश बुक, ठीक।
तो आपने पासबुक तक जाने के लिए क्या करना है, कैश बुक में या तो कुछ ऐड करना है या कैश बुक में से माइनस करना है। पासबुक को नहीं छेड़ना, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है, यहां तक तो आपको जाना है, इक्वल करना है इसके। बट एक तो सेम कंसेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसे मैं रब कर रहा हूं यहां से। नाउ द ट्रांजैक्शन इज चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक और इजी वे से हम इसे करते हैं। बेटे आप अपनी दोनों पाम, अपने दोनों हाथ आगे लेके आइए। वन जो फर्स्ट है इससे हाथ है, इसे आप कैश बुक मानिए और सेकंड को आप मानिए पासबुक। ओके, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर क्वेश्चन विद बैलेंस ऑफ कैश बुक। सो एक हाथ को आप कैश बुक मान के चलिए। सपोज दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज कैश बुक एंड दिस वन इज योर पासबुक। और अगर आपको लगता है किसी भी रीजन से ये कैश बुक कम है पासबुक से, सो दिस इज योर डेस्टिनेशन। तो अगर आपको लगता है कैश बुक कम है पासबुक से, तो आपने कैश बुक में कुछ ना कुछ प्लस कर देना है सो दैट ये इक्वल आ जाए पासबुक के। और अगर आपको लगता है किसी भी रीजन से आपकी कैश बुक ज्यादा है पासबुक से, तो पासबुक को, कैश बुक को कम कर दो सो दैट ये इक्वल आ जाए। ठीक है, तो आपको ये बहुत इजी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन इज चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिया, मींस कैश बुक कम हो गई आपकी, बिकॉज आपने माइनस साइड में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। बट ड्यू टू एनी रीजन, सपोज चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड येट मीन जिस डेट पे आप बीआरएस बना रहे हो तब तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, उस पर्सन ने पेमेंट नहीं निकलवाई। तो ऐसे में पासबुक का बैलेंस तो ज्यादा है, आपकी कैश बुक कम है। सो आप क्या करेंगे, जस्ट टू मैच योर कैश बुक बैलेंस विद पासबुक, तो आप इसमें ऐड कर देंगे नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड। Amount directly deposited by the customer in our bank account। हुआ क्या, sometimes our customer may deposit money into our bank account directly। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जाके अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, उसने पैसा देना था। सो बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, पासबुक इंक्रीज हो गई, बट यू हैव नॉट रिकॉर्डेड इनटू योर कैश बुक येट, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। सो इससे मैच करने के लिए क्या करेंगे आप, यस कैश बुक में प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। देखिए समटाइम्स बैंक अलाउ सम इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिटेड मनी। बैंक ने आपकी डिपॉजिटेड मनी पे इंटरेस्ट अलाउ किया, तो बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट में प्लस कर दिया। नाउ द बैलेंस ऑफ योर पासबुक इज मोर देन योर कैश बुक, बिकॉज यू हैव नो इंटीमेशन फ्रॉम बैंक के इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड। तो बैंक ने इंटरेस्ट ऐड किया, तो पासबुक इज मोर देन योर कैश बुक। तो क्या करोगे मैच करने के लिए, कैश बुक कम है ना, इक्वल करने के लिए इसे इसमें प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द बैंक। received by the bank on our behalf। अब हुआ क्या कि बैंक ने सपोज कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, कोई डिविडेंड रिसीव किया, या कोई एनी पेमेंट, सपोज हमारा इंश्योरेंस क्लेम आना था और डायरेक्टली दैट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट, हमारे बैंक में चला गया, तो बैंक ने रिसीव किया। नाउ द पासबुक बैलेंस इज मोर देन योर कैश बुक बिकॉज यू हैव नो इंटीमेशन रिगार्डिंग दिस। सो पर्टिकुलर डेट पे सपोज 30 जून को आप बना रहे हो या 1 सितंबर को बना रहे हो, तो आपको क्या हुआ, पता लगा कि यस बैंक में इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई अमाउंट ऐड हो चुका है, कैश बुक में नहीं मालूम, तो आप क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए यू विल ऐड द सेम अमाउंट इनटू योर कैश बुक बैलेंस, आप यहां पर ऐड कर देंगे। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज चेक और ड्राफ्ट
deposited into bank, but omitted to be recorded into cash book. So what happened कि आपको कोई चेक रिसीव हुआ एंड यू हैव डिपॉजिटेड द चेक, सेम चेक इनटू योर बैंक. आपने चेक बैंक में डिपॉजिट तो करा दिया, पे तो कर दिया, बट आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए. सो बैंक में चेक गया तो आपकी पासबुक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बट स्टिल योर कैश बुक हैज नॉट बीन इंक्रीज. सो व्हाट यू विल यू डू, ऐड कर देंगे आप. सो ऐड कर दीजिए यहां पे. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज के एनी wrong credit given by the bank. Now sometimes error can be committed by the bank. अब गलती से बैंक ने आपके अकाउंट में कुछ क्या कर दिया, अमाउंट इंक्रीज कर दिया. सो आप भी क्या करेंगे, कैश बुक को जस्ट टेम्परेली मैच करने के लिए फॉर दिस BRS यू विल ऐड द सेम अमाउंट इनटू योर कैश बुक बैलेंस just to reconcile your passbook. Okay, now next one is check paid, check or draft both. Okay, check paid or deposited into bank. But not yet credited by the bank. Now sometimes you receive payment by check or draft is received and you have deposited into bank. आपने बैंक में वो चेक डिपॉजिट भी करा दिया. तो when you deposit check the same check into bank, then आपने कैश बुक को क्या किया होगा, डेफिनेटली इंक्रीज कर दिया. बट आपको एक इंटीमेशन मिली, बैंक से इंफॉर्मेशन मिली कि वो चेक जिस डेट पे आप ये BRS बना रहे हो, जिस डेट पे आपने पासबुक का बैलेंस चेक किया, उस डेट तक वो चेक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया था. बिकॉज देयर मे बी सम प्रोसीजर, बैंक का भी एक प्रोसीजर होता है चेक को डिपॉजिट करने का, है ना. और चीजों से सपोज ऑफ आ गया, कोई फेस्टिव ऑफ आ गया 2-3 दिन का, तो हमने तो बैंक कैश बुक को इंक्रीज कर दिया, बट स्टिल बैंक ने इंक्रीज नहीं किया. सो नाउ योर कैश बुक बैलेंस इज लेस देन योर पासबुक. तो क्या करेंगे अब आप, जस्ट टू मैच योर कैश बुक बैलेंस विद दिस पासबुक, रिड्यूस द बैलेंस ऑफ कैश बुक. आप इसको अब माइनस कर देंगे. बिकॉज मैंने आपको बताया था क्या कि दिस इज योर, we have started our question with the balance of cash book. So आपका ये कैश बुक है, दिस वन इज योर पासबुक. तो आपने सिर्फ कैश बुक में ही क्या करना है, या तो कुछ कम है कैश बुक तो प्लस करना है, एंड इफ योर कैश बुक इज मोर देन पासबुक देन आपने माइनस करना है. सिंपल. एक गाना माइंड में रखना था ना, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे. यस, आपने सिर्फ एक को ध्यान रखना है, कैश बुक को. इफ यू फाइंड कैश बुक इज मोर देन पासबुक देन रिड्यूस कर दो उसे, एंड इफ यू फाइंड कि कैश बुक जो इज लेस देन योर पासबुक देन इसमें इंक्रीज कर दो, ऐड कर दो. गॉट इट. चलिए, सो चेक पेड और डिपॉजिटेड इनटू बैंक. आपने चेक डिपॉजिट कराया, आपने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया, बट बैंक ने अभी तक नहीं किया, तो क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज चेक पेड और डिपॉजिटेड into bank but dishonored by the bank. या सिंपल कह दो कि चेक पेड और डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक. इट मीन्स क्या हुआ, व्हाट हैपन कि यू हैव रिसीव्ड चेक एंड यू हैव डिपॉजिटेड इनटू बैंक. आपने बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया, so you have increased your cash book, but
at the time of this reconciliation time you got the information from bank that your check has been dishonored because पासबुक से पता लगा कि बैंक ने उस चेक को आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, प्लस नहीं किया, बिकॉज चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। अब चेक डिसऑनर हो गया, आपने तो कैश बुक को इंक्रीज कर दिया, क्या करेंगे अब आप? यस, डिक्रीज कर देंगे। गॉट इट? नेक्स्ट, एनी पेमेंट made by the bank as per our standing order now sometimes we give instruction to the bank to make some payment। suppose insurance premium है, क्वार्टरली और 6 मंथली और एनुअली हमारा प्रीमियम जाता है, हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया कि यस एवरी 6 मंथ और एवरी एनुअल या एनुअली मेक द पेमेंट टू इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया करो। ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि यस डिपॉजिट द फीस ऑफ माय वार्ड इनटू द अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल इन एवरी क्वार्टर और इन एवरी 3 मंथ्स। हर क्वार्टर में आपने क्या करना है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप फी निकालिए और वहां पर डिपॉजिट करा दीजिए। कहां पे? स्कूल के अकाउंट में। तो बैंक ने एज पर योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक हैज मेड द पेमेंट, बैंक ने पेमेंट करी और बैंक ने आपके अकाउंट को रिड्यूस कर दिया। बट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग या जिस डेट पे आप बीआरएस बना रहे हो, एट दैट टाइम यू हैव नो इंफॉर्मेशन और आपको पता लगा कि बैंक ने पेमेंट कर दी, कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक अभी तक कम नहीं थी, आप क्या करेंगे? अब कैश बुक को भी कम कर देंगे यहां पर। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस और कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक so sometimes bank may charge some interest on our overdraft balance। basically आपका नेगेटिव बैलेंस है तो बैंक आपसे क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एंड समटाइम्स बैंक चार्ज सम चार्जेस एंड समटाइम्स बैंक चार्ज सम कमीशन। लाइक जब आप ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हैं तो बैंक क्या करता है? आपसे कुछ कमीशन लेता है। सो दीज चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। एंड जब आपने पासबुक कंप्लीट कराई तब आपको पता लगा या बैंक स्टेटमेंट बनवाई बैंक से तो तब पता लगा कि यस बैंक हैज डिडक्टेड और रिड्यूस्ड योर बैंक बैलेंस विद सच चार्जेस। तो बैंक ने चार्ज किया, पासबुक हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द बैंक बट यू हैव नो इंफॉर्मेशन, तो आपकी कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा है। सो मैच करने के लिए क्या करेंगे आप? यू विल रिड्यूस योर कैश बुक। ओके, कैश बुक बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड। आप क्या करेंगे? इसे माइनस कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज चेक इश्यूड or drawn but omitted to be recorded into cash book। What happened? You have issued or drawn check, you have made payment by issuing check to someone। आपने पेमेंट कर दी चेक से, but you have omitted to record into your cash book। आपने पेमेंट तो कर दी बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। इट मीन्स यू हैव नॉट रिड्यूस योर कैश बुक, आपने उसको कम नहीं किया। बट बैंक ने क्या किया? जिस पर्सन को आपने चेक दिया, he has withdrawn money from your bank, उसने आपके बैंक से पैसे निकलवा लिए। So bank balance is reduced because bank has made payment to that particular person। तो बैंक का बैलेंस कम है, कैश बुक का कम नहीं है। क्या करेंगे मैच करने के लिए? यस, रिड्यूस कर देंगे आप। तो कैश बुक विल बी रिड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट, एनी wrong debit given by the bank so wrongly bank may debit your account। आपके अकाउंट को कम भी कर सकता है गलती से। बैंक कैन ऑल्सो कमिट मिस्टेक। तो बैंक ने क्या किया? आपके बैंक बैलेंस को कम कर दिया।
टेम्परेरी है ये मिस्टेक, ठीक हो जाएगी, बट टेम्परेली जस्ट टू रिकंसाइल योर कैश बुक बैलेंस विद पासबुक यू विल रिड्यूस योर कैश बुक, सो दैट आपको पता लगे कि ये हमारे पासबुक से और यहाँ कैश बुक में डिफरेंस किस चीज से है, कितना है। गॉट इट? चलिए, सो आपने ये रिड्यूस किया। नाउ दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस, रीजन जिनसे दोनों कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में क्या आया, डिफरेंस आया। अब आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, प्लस का भी टोटल करेंगे एंड माइनस का भी टोटल करेंगे। एंड सपोज आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था प्लस साइड से, सो इफ योर दिस प्लस साइड इज मोर देन योर माइनस साइड, आपकी यही वाली साइड ज्यादा आ रही है, तो ऑटोमेटिकली योर बैलेंस वुड बी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, वो कब होगा, जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया प्लस कॉलम से, एंड इफ योर प्लस साइड इज मोर देन, प्लस कॉलम इज मोर देन योर माइनस कॉलम, देन साइन विल बी रिवर्स्ड। सो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आप लिखेंगे इसे, आप चाहें तो इसे कहीं भी सेंटर में भी लिख सकते हैं, और जहां कम आ रहा है आप इसे लिख के इसका टोटल भी कर सकते हैं। देयर इज नो प्रेस्क्राइब वे, आप कहीं भी ये बैलेंस लिख के बाद में इसका टोटल इक्वल भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपकी बुक में है, आप दोनों का टोटल करिए और इसको सेंटर में कहीं भी आप लिख सकते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है आपका। गॉट इट? बट हाँ, रिमेंबर, मैंने आपको एक बात बताया था कि ट्रांजैक्शन विच यू डेबिट बैंक, सेम ट्रांजैक्शन आर क्रेडिटेड बाय द बैंक। जो आप ट्रांजैक्शन को डेबिट करते हो, बैंक उसी ट्रांजैक्शन को क्या करता है, क्रेडिट करता है। इसीलिए जिसे हम डेबिट बोलते हैं, सिंपलिकली बैंक उसे क्रेडिट बोलता है। सो अगर आपने यहां प्लस से स्टार्ट किया और प्लस साइड ज्यादा है तो आपका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। रिमेंबर, बोथ आर फेवरेबल बैलेंस, दोनों ही फेवरेबल हैं। गॉट इट? और अगर आपकी माइनस साइड ज्यादा हो जाती है, देन सिंबल जो आपने डेबिट स्टार्ट किया, तो हियर वी विल राइट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि ये शो कर रहा है कि कैश बुक का तो फेवरेबल बैलेंस है, बट डिफरेंसेस इतने हैं कि पासबुक का नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस। गॉट इट? यस। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन these statement. Okay, now we are going to solve question number 3 of book DK Goyal. Here in this question, on 30th June 2020, the bank column of Mohan Kapoor's cash book showed a debit balance of rupees 12,000. So balance, debit balance as per cash book has been given, and that is 12,000. और मैंने अभी आपको बताया कि इट विल बी रिटन इन प्लस कॉलम। नाउ ऑन चेकिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट क्या क्या डिफरेंसेस मिले। नंबर 1, चेक पेड इनटू बैंक रुपीज 8,000, बट आउट ऑफ दीज only check of rupees 6,500 were cleared and credited by banker up to 30th June. So it means we are going to prepare our bank reconciliation statement on 30th June 2020 suppose. Okay, now आपको क्या दिया है, चेक पेड इनटू बैंक 8,000, बट out of these only check of rupees 6,500 were cleared and credited by the banker up to 30th June. It means we have deposited into bank rupees 8,000. हमने 8,000 के चेक डिपॉजिट करे, so we have increased our cash book by 8,000. But bank has increased only 6,500 because bank has credited only check of rupees 6,500. So 6,500 पासबुक आपकी कम है किससे, कैश बुक से, so आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। So narration would be check deposited but not yet credited. कितना, रुपीज 1,500 इट वुड बी डिडक्टेड। आप इसे माइनस कॉलम में लिखेंगे बिकॉज आपने तो कैश बुक में 8,000 प्लस कर दिया था, बट बैंक ने सिर्फ 6,500 प्लस किए, तो 1,500 आपने माइनस करने हैं। नेक्स्ट, check of rupees 9,200 were issued, but out of these only check of rupees 7,000 were presented for payment up to 30th June.
So narration would be check issued but not yet presented for payment. It means you have issued check. आपने 9200 के चेक इशू किए तो यू हैव रिड्यूस योर कैश बुक बाय रुपीज 9200, बट जो पेमेंट हुई बैंक से वो हुई 7000 की. तो इट मींस यू हैव रिड्यूस योर कैश बुक बाय 9200, बट बैंक ने 7000 रिड्यूस किया. इट मींस आपकी जो कैश बुक है वो 2200 ज्यादा कम है पासबुक से. सो यू विल ऐड 2200 in your this BRS or bank balance of cash book. Got it? Next one is the receipt column of cash book has been undercast by rupees 200. So receipt column of cash book is undercast by rupees 200. It means क्या हुआ कि you have recorded 200 less in your receipt side. This is your receipt side. आपने 200 अगर कम लिखा तो इट मीन्स जो आपका कैश बुक का बैलेंस है वो भी 200 क्या होगा आपका कम होगा. इट मीन्स योर कैश बुक बैलेंस इज 200 लेस देन योर पासबुक. पासबुक से 200 कम है तो आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे. तो क्या लिखेंगे यहां पे रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट या अंडरकास्टिंग ऑफ रिसीट्स कॉलम. कितने से कम है आपका 200 से. सो 200 आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यहां पर, बिकॉज आपने 200 रिसीट साइड में अगर कम लिखे तो आपके कैश बुक का बैलेंस 200 कम है इन कंपैरिजन टू पासबुक. सो यू विल ऐड द सेम 200. एंड नेक्स्ट इज, अब इससे रिलेटेड और भी हमारे केसेस हो सकते हैं वो अभी मैं डिस्कस करता हूं नीचे. Next one is the passbook shows a credit of rupees 330 as interest on investment collected by the banker and debit of 60 for bank charges. So दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर हो रही है बेटा. Passbook shows a credit of 330. It means bank has allowed interest. So interest allowed, interest on investment है basically. So passbook shows a credit of 330 as interest on investment collected. So interest on investment collected by the bank. So बैंक ने 330 इंटरेस्ट कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया तो पासबुक ज्यादा हो गई बट कैश बुक कम है. तो आप क्या करेंगे यू विल इंक्रीज योर कैश बुक बाय रुपीज 330. ओके. मोरओवर इसी का सेकंड पार्ट है कि एंड डेबिट 60 फॉर बैंक चार्जेस. इट मींस बैंक हैज चार्ज सम चार्जेस. सो बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक. बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक. सो बैंक हैज चार्ज सम चार्जेस. तो बैंक ने जब आपसे चार्जेस लिए तो इट हैज रिड्यूस्ड योर बैंक पासबुक. उसने पासबुक को आपको कम कर दिया, बैंक बैलेंस आपका कम कर दिया. सो आप भी क्या करेंगे कम कर देंगे बिकॉज अभी तक आपकी कैश बुक में अमाउंट 60 रुपीज ज्यादा है. आप भी बैंक चार्जेस से क्या करेंगे कम कर देंगे 60 रुपीज. ओके कैश बुक से. नेक्स्ट वन इज ऑन 29th June a customer deposited rupees 3000 direct in the bank account but it was entered only in passbook. So narration would be amount directly deposited by the bank. Amount directly deposited by the customer in our bank account. सो बैंक अकाउंट में हमारे बैंक में डायरेक्ट कस्टमर ने डिपॉजिट करा दिए अमाउंट 3000. सो बैंक पासबुक जो बैंक कॉलम बैंक बैलेंस है एज पर पासबुक दैट हैज इंक्रीज्ड. बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो चुका है एज पर पासबुक. सो नाउ वी विल आल्सो इंक्रीज आवर बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक बाय रुपीज 3000. सो आपने कैश बुक को भी क्या करना है यहाँ पर इंक्रीज कर देना है. सो नाउ द ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड. सो नाउ टोटल ऑफ दीज टू कॉलम टोटल करिए बात. That would be 12,000 to 14,000, 14,400,
17,400 and 17,730. It would be कितना होगा टोटल आपका 12,000, 14,000, 14,400 and 17,400 and 430. So it would be 7,730. Now the total of this minus column is 1560. So now you can find the difference, that is 17,730 minus that is 1560. So it would be 16,170. 16,170 you can write in this column. और अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका टोटल भी लिख सकते हैं, दैट इज 17,730 and 17,730, and this would be credit balance as per passbook, because you can see कि this प्लस साइड से हमने स्टार्ट किया था और प्लस साइड ही ज्यादा है, तो नाउ द सिंबल विल बी रिवर्स, डेबिट से आप चले थे तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, इट वुड बी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 16,170. और मैंने आपको इसके तरीके और भी हो सकते हैं, आपके वे अलग हैं, इसको आप क्लोज करके नीचे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बैलेंस की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो डिफरेंट वेज हैं इसके. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. और अब की बार अगर मैं सेकंड पैटर्न आपसे डिस्कस करूं, मेरे पास कहते स्कीम है कि बाय 1 गेट 3 फ्री, इट मींस बाय 1 गेट 4, एक खरीदो और 4 मिलेंगे आपको. इट मींस अगर आपने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक डिस्कस कर लिया एंड इफ इन क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस हैज बीन गिवन, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, आपने जस्ट इस बैलेंस को प्लस की जगह माइनस कॉलम में लिखना है और बाकी आप प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेंगे. गॉट इट. लाइकवाइज अगर पासबुक में दे रखा है तो आपको एक छोटी सी टेबल फॉलो करनी है. वो टेबल कौन सी होगी, देखिए मैं आपको शॉर्टकट बता दूं यहां. Now this would be your table. This is your plus column, this one is minus. Here you write particulars. Now balance as per cash book. So if debit balance as per cash book is given, then it would be shown in this plus column debit, और आप कह सकते हो favorable balance. That is your favorable balance. Debit balance would be shown here, and if it is credit balance, then it would be shown in minus column. तो आपने just इसी तरह से इसे माइनस में लिख देना है if overdraft balance is given. So मैं यहाँ पर credit के साथ साथ overdraft भी लिख रहा हूँ. So this is your overdraft balance. Okay. So now if we start our question with the balance of passbook, because question can also be started with the balance of passbook, then the destination would be cash book. क्या destination होगा हमारा cash book. So if you start question balance as per passbook, so अगर आप passbook से अपना question start करते हैं, then symbolically it would be reversed. जो यहाँ debit लिखा it would be credit and credit would be डेबिट. सिंबलिकली बोथ आर डिफरेंट, है ना, बट चीजें एक ध्यान रखना कि डेबिट जो होगा बैंक का, दैट वुड बी ओवरड्राफ्ट बैलेंस. तो ओवरड्राफ्ट सेम रहेगा हमारा, सिंबलिकली ये सिर्फ अलग हो गया हमारा, बिकॉज जो हमारा डेबिट है वही बैंक का क्रेडिट है और जो हमारा क्रेडिट है वही बैंक का डेबिट है. बट रिमेंबर माइनस में दोनों ही ओवरड्राफ्ट आ रहे हैं हमारे, तो आप चेक कर सकते हैं. वैसे सिंबलिकली ये दोनों प्रोस में जा रहे हैं यहाँ पर. गॉट इट. बट हाँ, जब आपने बीआरएस को सॉल्व करना है विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, देन दिस ट्रीटमेंट विल बी रिवर्स्ड. तो आपने ट्रीटमेंट को क्या करना है, रिवर्स कर देना है. इस केस में रिवर्स ट्रीटमेंट वुड बी देयर. हाउ ट्रीटमेंट वुड बी रिवर्स, आप बताइए. पहले आप देख रहे थे कि अगर कैश बुक आपकी कम है पासबुक से तो आप ऐड करते रहे, because you have started your question with cash book,
बट सपोज नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन विद पासबुक बैलेंस। अब उसी क्वेश्चन को अगर आप पासबुक से करोगे तो जो चीज पहले कम थी, क्योंकि डेस्टिनेशन अब आपका क्या हो गया, कैश बुक हो गया, तो आपने क्या करना होगा, पासबुक को कम करना होगा। मींस जो चीज पहले आप कैश बुक से स्टार्ट करते थे और प्लस करते थे, वही चीज सेम अगर आप पासबुक से शुरू करते हो तो माइनस करनी होगी। इट मींस रिवर्स हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट, है ना। जो आपने प्लस में लिखा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में लिखा वो प्लस में हो जाएगा। बट रिमेंबर ये बैलेंसेस आपको ऐसे पुट करने हैं और क्वाइट इजी है ये आपका। करेक्ट। नाउ दूसरी बात हम बात करते हैं, यहां पे अभी हमने लिखा था कि रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹200। So different situation may be given in question regarding the receipt column of cash book, undercast, overcast, payment side of cash book, undercast, overcast. So अगर ऐसा आ जाए तो there is no need to be confused. Confuse होने की जरूरत नहीं है, आप एक छोटी सी टेबल फॉलो करना बेटा, बहुत इजी बता रहा हूं मैं। This is your plus column and this one is your minus column, और पर्टिकुलर में मैं ले रहा हूं यहां पर रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक। सो अगर रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक आपको गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹200। सो अंडरकास्ट है तो इट वुड बी एडेड हियर। सो यहां अंडरकास्ट आप लिखोगे, U/C means undercast. Okay, if receipt side is undercast then it will be added. आप ऐड कर दोगे जैसे हमने यहाँ 200 प्लस किया था। Got it? क्यों? बिकॉज अगर आपकी कैश बुक में 200 आपने कम लिखे, सपोज रिसिप्ट साइड में आपने 200 कम लिखे, कम लिखने से क्या होगा, आपका जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो भी 200 कम आएगा। सो नाउ योर कैश बुक बैलेंस इज 200 लेस देन योर पासबुक, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। गॉट इट? एंड ऑन द कंट्रेरी इफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, अगर क्या दे रखा है आपको, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट दे रखा है, इट मींस नाउ यू हैव एंटर्ड 2000 प्लस या 200 प्लस, आपने 200 ज्यादा लिख दिए रिसिप्ट साइड में, तो ऑटोमेटिकली योर कैश बुक विल शो 200 इंक्रीज्ड बैलेंस। आपकी कैश बुक 200 ज्यादा बैलेंस शो करेगी, विच इज मोर देन योर पासबुक। पासबुक का कम है बट आपकी कैश बुक 200 ज्यादा शो कर रही है, तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। गॉट इट? सो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर एज पर पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इफ इट इज ओवरकास्ट, रिवर्स हो जाएगा, अब इसमें क्रॉस चलेगा अब आपका, अगर ओवरकास्ट है तो इट वुड बी रिकॉर्डेड इन प्लस कॉलम, ओवरकास्ट, एंड इफ इट इज अंडरकास्ट देन इट वुड बी रिकॉर्डेड इन दिस माइनस कॉलम। आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि इसका अंडरकास्ट है रिसिप्ट साइड का प्लस में, तो अंडरकास्ट पेमेंट साइड का हो जाएगा माइनस में, यू कैन सी हियर। ओके, और अगर रिसिप्ट साइड का ओवरकास्ट माइनस में है तो पेमेंट साइड का कहां हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो आप रिवर्स करके भी ले सकते हैं, अदरवाइज एक चीज माइंड में रखिए, अंडरकास्ट अगर प्लस में है तो ये सब आपस में रिवर्स हो जाएंगे क्रॉस में। इजी वे है बेटा आपके लिए। गॉट इट? सो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बता भी देता हूं कि इफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट, सॉरी ओवरकास्ट, अगर ओवरकास्ट है तो वो प्लस क्यों होगा? सपोज यू हैव रिटर्न ₹1000 मोर देन इन योर पेमेंट साइड, आपने 1000 रुपीज ज्यादा लिख दिए कैश बुक के पेमेंट साइड में, सो ऑटोमेटिकली पेमेंट साइड में 1000 ज्यादा लिखना, ओवर लिखना मींस कैश बुक का बैलेंस 1000 ज्यादा कम कर देना। नाउ द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज 1000 लेस देन एक्चुअल बैलेंस, मींस पासबुक कह सकते हो, तो पासबुक से 1000 की बार कम है बिकॉज आपने पेमेंट में 1000 ज्यादा लिख दिए, तो ऑटोमेटिकली कैश बुक का बैलेंस कम है, तो रिकंसाइल करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो अगर रिसिप्ट साइड का अंडरकास्ट ऐड हो रहा है तो इससे रिवर्स पेमेंट साइड का ओवरकास्ट ऐड होगा, एंड ऐसे ही यहां पर क्रॉस है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर BRS। नाउ यू कैन सोल्व डिफरेंट क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ दिस टेबल। आपने जस्ट क्या करना है, अगर प्लस कॉलम है
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो प्लस में लिखेंगे, इफ इट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक वो माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही अगर पासबुक का है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक वो प्लस में और डेबिट बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस में चला जाएगा। बट रिमेंबर कि पासबुक से जब करोगे तो जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपके रिवर्स हो जाएंगे। मींस जो प्लस वाली आइटम है वो माइनस में जाएंगी एंड माइनस वाली आइटम प्लस में जाएंगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट बीआरएस। नाउ यू कैन सोल्व क्वेश्चन by taking these different balances. Okay, thank you.